हेलो गाइस, यू आर वार्म वेलकम वंस अगेन इन इजी इकोनॉमिक सेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। देयर आर डिफरेंट मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First, we'll see what is circular flow of national income. The modern economy is a monetary economy. We all know that money plays a very important role in economic transaction and it is used as the medium of exchange. So, in this monetary world, national income is a very important factor in economy. And this national income circulates in the economy from one sector to another sector. And how it circulates? It circulates in the form of income and expenditure. आज जो हमारे पास इनकम है, जब हम उसको स्पेंड करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर बन जाता है, लेकिन वही मेरा एक्सपेंडिचर किसी और का इनकम बन जाएगा। सिमिलरली वो पर्सन जब स्पेंड करेगा तो उसका एक्सपेंडिचर किसी और का इनकम बन जाएगा। इन दिस वे नेशनल इनकम इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग और सर्कुलेटिंग in the economy from one sector to another sector or from one hand to another hand in circular manner, and that is known as circular flow of national income. Now here we'll see circular flow of national income in 3 different segments. Okay, so first is circular flow of national income in 2 sectors. Then circular flow of national income in 3 sectors, and then circular flow of national income in 4 sectors. First 2 model is known as closed economy model, and the third one is known as the 4 sectors national income circulation, and that is known as open economy model. So in this particular video we are going to discuss the first one, 2 sector circular flow of national income. So here you can see this flow chart, circular flow of national income in 2 sectors, and those 2 sectors are household and firm. So you have to remember that in 2 sector economy or in 2 sector circular flow of national income, the 2 sectors are household and firm. Now we'll see what do you mean by households. Households किसको बोलेंगे and firm किसको बोलेंगे? Household जो होता है वो supplier होता है किस चीज़ का? Resources का, resources और you can say factors of production. Factors of production जो भी होते हैं land, labor, capital, entrepreneur, that is supplied by the household sector to the business firm. And business firm क्या करता है? It supplies goods and services to the household sector. We'll see here again the household sector provides the factors of production that just now we discussed. And what are those factors of production? Land, labor, capital, entrepreneur. Okay, with the help of all these factors of production takes place in the business firm sector. Okay, and when these factors are provided to the business firm, these factors get their payment. They receive their payments in the form of rent. अगर land है तो rent मिलेगा, अगर labor है तो wage मिलेगा, capital है तो interest मिलेगा, and entrepreneur है तो उसको profit मिलेगा. Okay. So this household sector is also known as consumption unit, क्योंकि जितने भी consumers होते हैं that belong to this household sector, and ये all the goods and services को consume करते हैं जो कि business sector में और business firm में produce होता है. business firm क्या करता है? resources use करता है जो household से लेता है और उससे वो production करता है, and उस production को market में लाता है in the form of goods and services. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन यूनिट, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, एंड हाउस होल्ड इज नोन एज कंजम्पशन यूनिट,
क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर्स होते हैं. नाउ विल सी टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. ये एग्जाम्स में आते हैं. रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. There are two types of flow. If you see the diagram, in further slide will show you the diagram of circular flow of national income. In that diagram, you will see the flow of movement of money and flow of movement of factors of production. So, real flow किसको बोलते हैं? All the factors of production, or you can say resources that are used for the production purposes. जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गए, ये सारे फैक्टर्स हो गए. और साथ में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो भी मार्केट में आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज सेल होने के लिए, तो इन सारे फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो. सो दिस इज नोन एज रियल फ्लो. एंड सेकेंड इज मनी फ्लो. इट इज रिलेटेड टू मनी, मीन्स इसमें मनी का ट्रांसफर होता है, मनी का सर्कुलेशन होता है. सो ये हो सकता है आपका जितने भी पेमेंट्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, जो भी लेबर को मिलता है, लैंड को मिलता है, या फिर एंटरप्रेन्योर को मिलता है, वो क्या मिलता है? मनी के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि ये मॉनेटरी इकोनॉमी है. तो जो भी इनको इनकम मिलता है तो वो मनी के फॉर्म में होता है. तो इसलिए इसको हम मनी फ्लो भी बोलते हैं. एंड जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट करते हैं, ठीक है, जब हम पेमेंट करते हैं मतलब गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज करते हैं, और उसके लिए जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट कैसे करते हैं? ये बार्टर सिस्टम तो है नहीं, ये मॉनेटरी सिस्टम है. तो पेमेंट मनी के रूप में ही करते हैं. तो मनी का भी फ्लो होता है. तो रियल थिंग्स का फ्लो होता है और मनी का फ्लो होता है. रियल थिंग्स में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए आपके, एंड गुड्स एंड सर्विसेज आ गए. एंड मनी फ्लो में सारे फैक्टर पेमेंट्स आ गए, एंड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी आ गया. नाउ विल सी दिस डायग्राम. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. अगर आप ये डायग्राम समझ जाते हैं तो पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर आपको समझ में आ जाएगा. एंड टू सेक्टर इज अ बेसिक मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो. टू सेक्टर यू कैन से द एलिमेंट्री वन. अगर ये समझा तभी आगे का 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर फ्लो आपको समझेगा. तो 2 सेक्टर में पहले ही हमने बताया कि 2 सेक्टर्स होते हैं. एक तो आपका है हाउस होल्ड, दूसरा है फॉर्म. हाउस होल्ड क्या है? फैक्टर ओनर्स हैं, और यहाँ पे कंज्यूमर्स होते हैं, कंजम्पशन यूनिट है ये. फॉर्म्स क्या होते हैं? फैक्टर यूजर्स. वो सारे फैक्टर्स को यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं आइटम्स, एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. ये दोनों का काम क्लियर हो गया, हाउस होल्ड एंड फॉर्म का. अब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, कैसे गिव एंड टेक का रिलेशन है, जो कि सर्कुलर मैनर में चलता रहता है. ठीक है. सो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, फैक्टर मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट. फैक्टर मार्केट में क्या हो रहा है? जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनका लेन देन हो रहा है. ठीक है. फैक्टर्स काम करते हैं, फैक्टर्स जा रहे हैं फॉर्म्स में, एंड कहाँ से कहाँ निकल करके जा रहे हैं? हाउस होल्ड से निकल के फॉर्म्स को. अगर आप ध्यान से देखें, आउटर सर्कल, ये अपर पार्ट जो है, जो आउटर सर्कल है, अगर आप एरो देखेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि कैसे फ्लो हो रहा है. बहुत ध्यान से आपको ये एरो देखना है. ठीक है. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे हाउस होल्ड से निकल के फॉर्म्स में जा रहे हैं. ठीक है. क्योंकि पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया कि हाउस होल्ड क्या होते हैं? सप्लायर होते हैं ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का. जितने भी मैन पावर हैं, जितने भी कैपिटल हैं एंड लैंड है, ये सब के ओनर होते हैं हाउस होल्ड वाले. तो यहाँ से निकल के ये फॉर्म्स में आ रहा है. ठीक है. और फॉर्म्स इनके बदले में इनको क्या दे रही है? इनके पेमेंट दे रही है ना. तो इसलिए ये जो सेकंड सर्कल है नीचे का, इसमें आपको दिखेगा आपका ये एरो मार्क इन दिस वे. तो फॉर्म फैक्टर्स को यूज करते हैं और उसके बदले में उनको पेमेंट देते हैं. अब नीचे का सेगमेंट देखते हैं डायग्राम का, दैट इज इन कमोडिटी मार्केट. कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है? अभी फॉर्म्स क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है. किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का. अब ये गुड्स एंड सर्विसेज कमोडिटी मार्केट में आएंगे
So the flow of goods and services goes from firms to household. Outer circle of the lower segment. Clear? Now the inner circle of the lower segment, payment for goods and services. अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं तो आपको उसका पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट यहाँ से निकल के यहाँ आता है. तो इस तरीके से सर्कल कंप्लीट हो जा रहा है. यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट देयर इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स. हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रहा है, फर्म्स हाउस होल्ड को क्या दे रहा है. इस तरीके से जो नेशनल इनकम है कंट्री की, वो यहाँ पे ऐसे ही टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलेट होती रहती है. ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी नहीं होते. एट प्रेजेंट इन द मॉडर्न टाइम इकोनॉमी इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड. सेक्टर्स एंड मार्केट्स आर देयर, तो उनके बीच में बहुत सारा फ्लो चलता रहता है इनकम का. बट दिस इज द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. कंट्री की जो भी इनकम होती है वो कंट्री के अंदर ही कैसे सर्कुलेट हो रही है, और इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कहीं भी इनकम जो है वो बाहर नहीं जा रहा है. बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज में नहीं जा रहा है. सो दैट्स वाई इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन क्लोज्ड इकोनॉमी. यहाँ पे फॉरेन इकोनॉमी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है. Now in two sector economy itself, two more things are added, that is known as saving and investment. क्या होता है कि जब हम अर्न करते हैं तो सारा का सारा पैसा खर्च नहीं करते, उसका एक पार्ट हम कहीं ना कहीं सेविंग कर लेते हैं. 100% is not spent on goods and services. A part of income is saved, and that saving creates leakages in the economy, in the सर्कुलेशन ऑफ मनी. क्योंकि जितना हम सेविंग करेंगे उतने अमाउंट तक इनकम जो है, मनी जो है वो मार्केट में नहीं आ पाएगी. ठीक है, आइदर हम अपने तिजोरी में रख दें या वॉलेट में रख दें, वो इनकम फिर मार्केट में नहीं आएगा अगर हम स्पेंड नहीं करेंगे तो. ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज सेविंग. और अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे सेविंग करते हैं और पैसे खर्च नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में क्या होता है, लीकेज क्रिएट करता है. एंड टू दैट एक्सटेंट इनकम सर्कुलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं दिस विल लीड टू फॉल इन टोटल इनकम्स ऑफ द हाउस होल्ड. Thus saving reduces the flow of money expenditure to the business firms and will cause fall in economy's total income. इकोनॉमी के टोटल इनकम में टू दैट एक्सटेंट क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा. एंड इसलिए इसको हम लीकेज बोलते हैं फ्रॉम द मनी एक्सपेंडिचर फ्लो. बट सेविंग को क्या होता है, सेविंग हम अपने पास नहीं रखते हैं, इसको हम बैंक में जमा कर देते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. तो वही सेविंग फिर एक्सपेंडिचर का फॉर्म ले लेता है. ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारा सेविंग, तो वो पैसा वापस मार्केट में आ गया, वापस इकोनॉमी में आ गया. और यू कैन से दैट अगेन कम्स अंडर द सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी. ठीक है, तो वो फिर कोई लीकेज क्रिएट नहीं करता है. तो यहाँ पे एक और डायग्राम बनता है जो कि बताता है कि इनकम कैसे फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो भी इनकम सर्कुलेट कर रहा है इकोनॉमी में, हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच में, एंड ऑल द इनकम्स आर स्पेंट. मतलब टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो यहाँ पे टू सेक्टर में हमने ऑलरेडी देखा है हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है, गिव एंड टेक का सर्कुलेशन चल रहा है. ठीक है, सेम डायग्राम में बस एक फैक्टर हमने और ऐड किया है, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट इज नॉट कंसिडर्ड एज द सेपरेट सेक्टर हियर, बट इट इज द सेपरेट सेगमेंट. ठीक है, उसमें वो ऐड कर दिया गया है टू सेक्टर इकोनॉमी में. तो ये जो सेविंग है दैट एस डिनोट्स सेविंग एंड आई डिनोट्स इन्वेस्टमेंट. तो
तो हाउस होल्ड जो है जितना भी इनकम अर्न करती है और उसका एक पार्ट जो वो सेविंग करती है, वो सेविंग अपने पास नहीं रखती है, वो फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिट करती है, या तो बैंक में करेगी या स्टॉक एक्सचेंज में करेगी। तो इस तरीके से बॉन्ड परचेज करेगी, शेयर परचेज करेगी। तो इस तरीके से उसका सेविंग जो है यहाँ पे मार्केट में आ जा रहा है, फाइनेंशियल मार्केट में। एंड इसी सेविंग को फर्म जो है फॉर इन्वेस्टमेंट इट बोरोज फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि फर्म्स को बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो कैपिटल जो है वो फाइनेंशियल मार्केट से लेना पड़ता है, ठीक है, मतलब वहाँ से वो बोरो करती है। तो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस इट बोरोज फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। तो यू कैन सी हियर दिस सेविंग बिकम्स इन्वेस्टमेंट, एंड इन दिस वे ऑल्सो जो भी पार्ट सेविंग था वो फर्म के पास चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ भी क्या हो जा रहा है, आपका एक गिव एंड टेक का रिलेशन है, एंड इनकम फ्लो कंटिन्यूअस चल रहा है एंड कंप्लीट हो जाता है, मतलब यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है। ये अज्यूम करते हैं कि जितना सेविंग है उतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितना इनकम है उतना एक्सपेंडिचर हो रहा है। So it is business firm who borrow from the financial market for investment in capital goods such as machines, factories, tools, trucks. Firms spend on investment in order to expand their productive capacity in future. Thus, through investment expenditure by borrowing, the savings of household deposited in financial market are again brought into the expenditure stream. And as a result, total flow of spending does not decrease. मैंने बोला ना कि ये जितना भी इनकम हो रहा है वो एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट होना ही चाहिए, दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे। सेविंग हो रहा था तो इक्वलाइज नहीं हो रहा था, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए सेविंग को किस में कन्वर्ट किया गया, इन्वेस्टमेंट में। नाउ दीज आर द मेन पॉइंट्स, और यू कैन से कंक्लूजन अबाउट दिस थियरी, टू सेक्टर इकोनॉमी थियरी। First is total production of goods and services by firms equal total consumption of goods and services by household. The firm में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सारा का सारा कंज्यूम हो रहा है किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, जबकि हाउस होल्ड वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर पेमेंट बाय फर्म्स जितना भी फैक्टर को पेमेंट कर रही है वो ऑटोमेटिकली फैक्टर इनकम बन जा रहा है हाउस होल्ड में जाके। थर्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर जितना भी कंज्यूम करते हैं और कंजम्पशन पे स्पेंड करते हैं, दैट बिकम्स इनकम ऑफ द बिजनेस फर्म्स। मतलब वो जो थियरी है कि वंस इनकम्स बिकम्स अनदर एक्सपेंडिचर, तो वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। And the last point is real flows of production and consumption of firms and household equal money flows of income and expenditure of firms and households. मतलब real flow जो है वो money flow के equalize हो जा रहा है। तो everything is equal. It is a quite ideal situation in two sector economy. Now there is a test time. In this test time, you have to answer one simple question. Question is, which is known as the real flow in circular flow of national income? ये चैप्टर में हमने अभी डिस्कस किया है, तो आप गो थ्रू कीजिए इस चैप्टर को and you have to find out the correct answer. I am not going to declare the answer right now. You have to find out the answer and comment section में आप इसका आंसर लिख करके भेज दीजिए। Hope you have understood circular flow of national income in two sector economy. Thank you very much. Have a nice day.